السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف کویسی۔ I am Said Muhammad Arif. I am from Assam, India, Assam. اسمیز بولنا تھا مجھے، لیکن بول اس لیے نہیں رہا ہوں کہ ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے، پھر بھی دنیا میں ایک نام ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، 2008 سے پتہ ہے کہ نہیں، میرے ایک دوست نے بولا یہ آپ سوال کر کے تو دیکھو جواب کیا نکلتا ہے، کہ اب تک اس نے جتنا آرٹ کیا ہے، جتنا بھی دیا ہے مذہب کے بارے میں، جتنا بھاشا یعنی کہ ترنگوں کہا جاتا ہے، خفدہ ترنگوں، اور آرٹ کیا ہے اس نے لائٹ لینسز، اس نے یہ پوچھا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے کہ میں اگر ضرورت پڑے تو میں عدالت سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں اگر اس دیش کی جتنا بھی سمسیا ہے مذہب کا، جس طریقے سے میں نے آرٹ کیا ہے، بھاشا کا لینس لیا ہے آرٹ کے ساتھ ویٹ میں، اگر میں یہ نہیں چلے اور دیش میں راستے میں نکلتے ہی بولے کہ دیش کا حالت خراب ہے، دیش میں سمسیا ہے، مذہب کے راستے سے نکلتے ہی بولے مذہب میں ساری گڑبڑی ہے، تو میں ایک کام کر سکتا ہوں کیا؟ اس نے پوچھا، اس نے بولا کہ میں پوچھا اس کو کیا ہے کہ اب تک جتنا دیا، جتنا لوگ جانتے ہیں جواب نہیں دیتے، نہ ہی اس میں ڈائریکٹلی بولتے ہیں، نہ ہی ہیلپ کرتے ہیں ڈائریکٹ۔ میں اگر اس کا اوپر گولی لگا دوں، دیش میں جس طریقے سے آرٹ کیا گیا اتنا ٹائمنگ کے اوپر، تو دیش کا کوئی منتری جی، دیش کا کوئی سرکشا، دیش کا کوئی ٹیررسٹ، دیش کا کوئی عام انسان میرے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں کیا؟ اگر آواز اٹھانا ہے تو یہ بھی جواب دینا، میں اس لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ اس نے یہ بولا 1 سال نہیں، پچھلے 8 سال 13-14 سال سے ترنگ اٹھا رہا ہے آرٹ کا، بھاشا کا، چاہے مذہب کا ہو۔ کوئی انسان اگر بولے کہ ہم مذہب کا ہے، ہم شریف ہے، ہم سچا ہے، اور یہ نہیں بولتے ہیں، یہ نہیں دکھاتے ہیں، چاہے کتنا بھی ہو، دیش کا ہو، بولے کہ ہم دیش کی سیوا کرتے ہیں، اور یہاں پر اتنی ویٹ آرٹ کے ساتھ لینس میں، تو ڈائریکٹ لگانے سے اس کو دیش دروہی قرار دیا جائے گا، اور اس کو مذہب کا دروہی قرار دیا جائے گا، یا جس نے لگائے گا اس کو دوشی قرار دیا جائے گا؟ یہ سوال ہم سے جاننا چاہتا ہے، ہم سے پوچھا ہے کہ آپ بولو۔ عدالت سے بھی یہ بولنے کے لیے کہا، آپ جو سن رہے ہیں آپ عدالت میں یہ بولنا، اب تک جتنا آرٹ کیا گیا مذہب کا، کوئی بھی انسان جو بولتے ہیں کہ ہم سچا ہے، کہیں بھی ہو، کہیں کسی کا بھی ہو، کہاں بھی ہو، کسی بھی مذہب کا بھی، تو بولا ہے اس نے اگر ہم ڈائریکٹ ایک ساتھ بٹم دبائے کہ اتنا آدمی کو اگر سچائی میں نہیں ہے تو اگر ہم مار دیں، کہ ہمیں مذہب کا دروہی کہا جائے گا یا اس کو مذہب کا دروہی؟ ہمیں دیش دروہی کہا جائے گا یا اس کو دیش دروہی کہا جائے گا؟ میں نے بولا تم تھوڑا ٹھہرو، مجھے بھی فائل نکلنا ہے، ابھی میرا پاس بھی وقت نہیں۔ میں نے بولا اتنا آدمی کہ بھائی وقت نہیں ہے، میں تو غلط کام آپ کو مار کے نہیں لے سکتا، آپ کو سچائی سے پیش آیا، حقیقت سے پیش آیا، آپ کا خدمت میں ہم کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا خدمت کیجیے۔ تو پچھلے 12 سال ہم بھی اس طریقے سے دکھایا کہ یہ دیکھو، اگر اس انسان کا سوال ہم دینا پڑے، سوچو ہم پروسیس میں ہیں، سوچو ہم مذہب کا ایک آدمی ہے، ہم جناب نہیں ہے، حضور نہیں ہے، سب نہیں ہے، لیکن اس کا پیچھے میں بیٹھتے ہیں، اتنا میں نہیں ہوں، تو ہمیں اگر اس نے بولا کہ آپ کا ہمارا کیا غلطی ہے، ہم نے بولا کہ ہمارا پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہمارا تو غلطی ہو نہیں سکتا۔
अगर मेरे पास होता तो भाई मजहब के लिए आप देशद्रोही नहीं है, ना ही मजहब द्रोही है। आप सारे सिखा रहा है, आप बोला नहीं गलती हुआ है, और उसके बाद बोला है कि इसका मतलब डेट होता है। डेट उसका डेट से या उसका डेट से अच्छा होता है, ये पूछा है। साथ में भी ये पूछा कि देशद्रोही किसको करार दिया जाएगा या मजहब द्रोही किसको करार दिया जाएगा। अगर ये गलती है तो जितना भी आप सुन रहा है, चाहे फोर्सेस में है, चाहे आप पॉलिटिकल में हैं, क्योंकि पॉलिटिकल का मतलब होता है आप राजनीति में आओ आके बोलो। उसने बोला 65 ईयर्स नहीं, 4,500 साल आर्ट में देख लो हो गया। एक बात बोलने में इतना टाइम लगता है, एक बात अदालत में जाने में इतना टाइम लगता है, इसीलिए उसने टाइम से पहले सारा कागज़ दे दिया कि देखो आप जिस बात की टाइम लगाएगा इसका आंसर ये है प्लस माइनस। जैसे यहाँ पर दिखाया गया था मौसम टास्क फोर्स के ऊपर, यहाँ जो उसने 65 ईयर्स का मौसम आर्ट किया था कि कौन सा टाइम में टास्क करने में 65 ईयर्स से क्या मौसम यानी कि कौन सा तरीका निकलता है। यहाँ ऊपर में देखो, नीचे देखो, यहाँ 47 है, 47 से ये 47 से भारत स्वाधीन हुआ 2022 ऊपर में लगा हुआ है। 1 साल का मौसम है। जैसे मौसम कहा जाता है कि आज का मौसम किधर से जाएगा, बात बोलने से ही टास्क होता है कि नहीं। तो इस तरीके से उसने बोला अगर हम इसी लाइन से राजनीति में जाए तो इसका वोट कितना लगेगा, शायद हमें किसी ने वोट भी नहीं देगा। जिस तरीके से हमको हेल्प नहीं किया, वोट कहाँ से देगा, ये बात पूछा। तो अगर इस तरीके से निकले तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये भी पूछा। साथ में बहुत आर्ट दिया है उसने, हम उससे सवाल का जवाब क्या करें। ऐसा आर्ट मजहब के बारे में दिया कि मौसम मजहब का कोई इंसान खराब ही नहीं कर सकता। चाहे आप मंदिर में जाए, गिरजा में जाए या मस्जिद नमाज में जाए, जो मजहब का करना है रुतबिली की तरफ करेगा। और जो उल्टा पल्टा भाषा से वक्त निकलना है, सही तरंग मारेगा। जैसे आर्ट में यहाँ किया गया था, सही आर्ट का तरंग को यहाँ लगाया गया था। यहाँ देखो सही आर्ट का तरीका उसने इतना पाइपलाइन दिया है कि देखो गांव से लेकर यहाँ से हम ये पूरी बात में दे रहे हैं, आर्ट दे रहा है, ये आर्ट का लाइन क्या है। तो अदालत से भी हम पूछ रहा हूँ ये बात कि ये देशद्रोही करार दिया जाएगा उसको या उसको मजहब द्रोही करार दिया जाएगा, क्योंकि ये पहले जानना ज़रूरी है। तो उसको मैं अदालत में पहले ही अदालत में भेज दूंगा कि आप देशद्रोही है, आपको पता नहीं है इस देश का हिस्ट्री, कहानी, इतिहास, कल्चर। आप मजहब द्रोही है, आपको पता नहीं मजहब कैसे पालन करते हैं, मजहब का पढ़ाई कैसे आर्ट होता है, कैसे लाइन में लगाया जाता है। आपको पता नहीं, मैं बोलूँगा कि आप सीख लो पहले, बाद में बोलेगा कि तरंग कौन सा तरंग में कितना वर्ड है और 47 का ऑपरेशन में कितना वजन है, आर्ट में लाइन में आ रहा है। ये हमारी जितना भी लिसनेस है, आप बॉलीवुड में हैं, हॉलीवुड में हैं, आप फोर्सेस में हैं, आप देश की पॉलिटिकल में हैं, सारे की आगे अकेला अकेला नहीं है आप कि हम अकेले, हम कैसे बोलेंगे, हमारे तो दम ही नहीं है, सच्चा ही बोलना है। आप जनता में हैं, आप मजहब में हैं, किसी भी, हम सेवा करते हैं डे नाइट पिछले 13 साल। तो आप हमें ये सवाल का जवाब देना। मैंने फाइल नहीं निकाला अभी, लेकिन उसने हमें सवाल किया है ये बात कि आप पहले पूछो कि हम इतना देखो हार्ट में इतना आदमी। तो इसने बहुत चीज़ लिखा है, शायद आप लोग सारे जानते हैं 2008 से। तो उसका सही जवाब देना, क्योंकि एक देश की इतनी बड़ी सवाल है, एक साथ इतना वेट उठाना कोई अचानक की बात होगा। तो इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ आप सबसे, जितने भी देश की सच्चाई नहीं, धर्म की नहीं, सारी दुनिया की भलाई चाहते हैं, इस बात का जवाब देना कि कोई गलती ना करे, पहले जान ले कि गलती क्या होगा हमारा। उम्मीद करते हैं हम आप लोगों से कि एक सच्चा जवाब देंगे। अब हम सलाह उसके अच्छा देंगे, कहीं गलत ना करें। ऐसे ना करें कि हज़ारों बम फटाए लेकिन आंसर एक ही नहीं निकले, ये निकले कि ये टेररिस्ट है। हज़ारों गोलियाँ धागे, ये निकले कि ये टेररिस्ट है। हज़ारों क्या क्या करे, बोले कि ये कि गलत का पॉलिटिकल लीडर है। हज़ारों भाषा बोले कि ये गलत मजहब का है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि सारे सोच समझ के, सबका भला ही है। इसने इतना अच्छा तरीके से इंटरेस्ट स्टार्ट किया है, किसका कितना इंटरेस्ट है।
आम इंसान का कितना है, फोर्सेस का कितना है, पॉलिटिकल का कितना है, एक मजहब की गुरु का कितना हो, जो ने सुबह बोलते ही बोलता है कि हमारा मजहब खराब हो गया, मजहब का लोग खराब हो गया। एक देश का नेताजी बोलता है कि हमारा देश में सारे लोग बुरा हो गया, पॉलिटिकल लीडर ये दूसरा लीडर खराब हो गया। कितना बुराई का बात है, अच्छा नहीं किसी के लिए भी, खास करके इंसानियत के लिए तो कभी नहीं। तो ये सवाल का जवाब आप बुजुर्गों सब लोगों से, चाहे बच्चा हो जो समझता है भाषा हमारा, मोहम्मद आरिफ से, मोहम्मद आरिफ है कोई से परम आसान বুঝছেন কথাটি কি বলছি আমি? গতিকে इसीलिए इस बात का जवाब हमें चाहिए। मेरा मोबाइल ख़राब है, आप रीच देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मैं बोला पिछले 13 साल से एक भी वक्त मेरा पास नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए ये उम्मीद करता है। तो किसी एक इंसान का ये सवाल का जवाब आप लोगों को देना, इससे नेकी का बात अच्छा नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप हिंदू हैं, आप जानते हैं कि आप क्रिस्चन है, ईसाई है, आप दूसरा है, आप असामीज है, सबसे बेस्ट लाइफ एम। इसलिए इस चीज़ का जवाब मांगना चाहता है कि कभी भी वो गलत कर सकता है। अदालत में जाएगा तो ये सारे फाइल उसके आगे, हमें बोला है कि आप आगे फाइल फेंक दो, कहीं भी किसी भी जगह गलत हो सकता है। तो ये अगर गलत है तो आंसर फटाफट टाइम से मतलब है उसका, और टाइम से मतलब यानी कि सच्चाई से मतलब है। जितना लेट होगा इंसानियत का उतना खराबी होगा, जितना अच्छा होगा उतना फ़ायदा होगा। तो ये सवाल का जवाब आप लोग हमें देना। एक नादान आदमी है, आप तक लिखा पढ़ा भी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ किसी भी चीज़ करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और 100 बार जान लेना चाहिए। इतने लोगों से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए, नहीं तो कभी गलत हो सकता है। सारे लोगों की दिल का मामला होता है, इसीलिए दिल हमेशा खुश रहना चाहिए। गलत काम पर नहीं, सही काम पर। सही काम सारी दुनिया जाने, ये भी गलत नहीं, ये भी सही। खुशियाँ बांटने से बढ़ता है, गम बांटने से कमता है। किसी इंसान का दिल में अगर ये गम है, किसी इंसान की पूरी वर्ल्ड की लाइन के ऊपर ये गम है, तो बांटने से कम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मौसम की पॉलिटिकल के साथ कि आप लोग शायद सही आंसर देंगे, हम उसको एक सही सलाह देंगे। कहीं गलत ना करे कि 100 बम फटने के बाद आंसर एक ही निकले, 100 गोली दागने के बाद एक ही निकले, कि बॉल डाल देने के बाद रन इतना लेना पड़ता है, और बॉल डालने के बाद इतना भी जाता है। फुटबॉल में ऑफसाइड भी होता है, फाउल भी होता है, सारे होता है, लेकिन ये पहले पूछ रहा है कि ये क्या होगा, गलत होगा या सही होगा। तो आप लोग इसका जवाब देना। मैं आशा करता हूँ कि आप फटाफट देंगे, इससे हर चीज़ का जवाब देते हैं आप लोग सारे। मेरा पास वक्त नहीं, इसका जवाब अच्छी तरीके से दे दिया कि हम हेल्प कर रहे हैं जहाँ भी। लेकिन उस इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि सही एक इंसान निकले, सबका भला हो, इंसान का भला हो। तो जिसने सारी दुनिया कायनात जगत संसार बनाया उसका भी भला होगा, तो हम लोगों का भला होगा।